Hello everyone. I am Divya Agarwal, working as an assistant professor in the Department of Chemical Engineering, Meerut. We'll discuss about the test of unit number 4, that is filtration part. Students, unit 4th is of two parts. Unit first part is of filtration and the second part is of fluidization. So in this test, I would like to revise you the topics of filtration so that you can prepare well for your semester exam. In my previous video, I have make a discussion of filtration and fluidization both. But now in this video, we will discuss about the questions. How will they come in the exam? Okay, students. So my first question is, describe the construction and working of rotary drum vacuum filter with diagram. So in this question you have to explain the working principle, construction and working. Students, always write these answer in points. I will give you example like this. First of all, draw the diagram for the rotary drum filter. I have explained this in my previous video. Then write down the working principle, that it works on the principle of vacuum force and it is an example of continuous filter. Fine. Then explain the construction of this rotary drum vacuum filter. You can also explain this construction in point wise also, that it consists of a drum provided with outer drum covered with cloth and agitator is provided like this. Okay. Then you will explain the working, that how the filtration process takes place in this rotary drum vacuum filter. Fine. Now I will come on the next question. This numerical we will discuss at the last. We will first discuss the question number 3. In question number 3, you have to write down the working principle, construction and working of plate and frame filter press. So students, again this question will be like the above question. First of all, draw the diagram of plate and frame filter press. Then explain the principle. Plate and frame press works on the principle of pressure force. Rotary drum vacuum filter was on the vacuum force and this was on the pressure force, and it is an example of batch filter, while the rotary drum was the continuous filter. Then explain the construction, that how the plates and frames are arranged, and then explain the working. Okay. Now next question. Next question is the derive the instantaneous rate equation of filtration for constant pressure filtration. So this is the equation. I have also done this derivation in my notes also. So you can go through it. That first of all we will put the value of alpha and Rm. From these we will find out delta Pc and delta Pm. Then we find out total pressure drop. And then we put the constant pressure filtration, and then you will finally derive this equation, and then the graph is given by this, that T upon V versus V. Intercept will give you the value of 1 upon Q naught and slope will be the Kc by 2. Fine, students. Next question is, what are the factors affecting rate of filtration? Now what are the factors affecting rate of filtration? These are the factors like pressure drop, area, viscosity, pore size, and what are the characteristics of filter medium. कि जो आप फिल्टर मीडियम ले रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए. तो आप देख सकते हैं प्रेशर ड्रॉप से क्या प्रेशर ड्रॉप है, एरिया है, विस्कोसिटी है और पोर साइज है, और उसके बाद क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. फाइन. नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स. हमें डिस्कस कर लिया है. लास्ट द क्लासीफाई फिल्टर्स ऑन द डिफरेंट बेसिस. स्टूडेंट्स, मैं आपको हर एक वीडियो में जहाँ भी मैं टाइप्स और वो एक्सप्लेन करती हूँ, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि टाइप्स होता है आपका जनरल कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन होता है आपका किसी ना किसी बेसिस पे. तो यहाँ पे आपसे क्लासिफिकेशन पूछा है तो हमने डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई किया है. सबसे पहले हमने क्लासीफाई किया है कि आपका किस टाइप का आपका प्रोडक्ट चाहिए, कि केक फिल्टर चाहिए या फिर क्लैरिफाइंग फिल्टर्स है, कि आपको सॉलिड चाहिए या फिर आपको लिक्विड चाहिए. अगर आपको सॉलिड चाहिए तो आप केक फिल्टर्स यूज़ करेंगे, और अगर आपको लिक्विड ज़्यादा चाहिए तो आप क्लैरिफाइंग फिल्टर्स यूज़ करेंगे. मीन्स ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ फिल्टरेशन. नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिस पे आपका बैच और कंटिन्यूस फिल्टर होता है. और देन है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ सेपरेशन.
फोर्स ऑफ सेपरेशन के बेसिस पे हम इसे 4 कैटेगरीज में करते हैं, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वैक्यूम फोर्स। अब आपका लास्ट न्यूमेरिकल बचा है, एक बार हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है। आपको गिवन है कि आपके पास एक प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस है जिसके अंदर 20 फ्रेम्स हैं और ईच की डायमेंशन ये है। बेटा अगर आपको एक की डायमेंशन गिवन है तो आप 20 का एरिया निकाल सकते हैं। 20 का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 फ्रेम इंटू एरिया इंटू 20। फाइन। उसके बाद आपको गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ वॉश वाटर गिवन है 10% ऑफ द फिल्ट्रेट पर साइकिल, और आपको गिवन है टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिल्टरिंग एंड कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन इज 2 hours, और वॉशिंग इज डन एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। और आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द टाइम ऑफ वॉशिंग निकालना है आपको। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको गिवन है कि 20 फ्रेम्स हैं, तो आपने एक का एरिया निकाला, 20 से मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया आ गया। अब आपको गिवन है कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉश वाटर है वो कितना है, 10% ऑफ फिल्टरेट साइकिल, कि मीन्स जितना आपका फिल्टरेट निकल रहा है उसका 10% आप वॉश वाटर यूज़ कर रहे हैं। टाइम ऑफ फिल्ट्रेशन कितना है आपका, 2 hours। उसके अलावा आपको कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन ये रही है आपकी, आपको निकालना है टाइम ऑफ वॉशिंग निकालना है, और आपको गिवन है कि आप रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम निगलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको पता है टाइम ऑफ वॉशिंग किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉश वाटर अपॉन रेट ऑफ वॉशिंग, और रेट ऑफ वॉशिंग होता है 1/4 ऑफ रेट ऑफ फाइनल फिल्ट्रेशन। अब बेटा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आपका होता है T/V इक्वल्स टू KCV/2 + 1/Q0। अब आपको यहाँ पे मीडियम रेजिस्टेंस 0 दिया है, तो 1/Q0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके बाद इसका मतलब आपके पास रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना बचा, रेट हमेशा T नीचे आता है तो V/T हो जाएगा 1/KCV/2। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे वही वैल्यू रख दी, T/V की वैल्यू ये रख दी, तो यहाँ से हमने KCV² इक्वल्स टू 2T हो गया। हमने यहाँ से उसकी वैल्यू निकाल दी टाइम की, टाइम ऑफ वॉशिंग आपका आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, आपको पता है टाइम ऑफ वॉशिंग की इक्वेट किया आपने किससे, KCV/2 से। उसके KC की वैल्यू क्या होती है आपकी, म्यू अल्फ़ा A² इंटू डेल्टा P। यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करी और ये आपने V की टर्म्स में इक्वेशन निकाल ली। अब रेट ऑफ वॉशिंग आया, फिर से वॉल्यूम ऑफ वॉश वाटर कितना ले लिया हमने, 10% ऑफ फिल्ट्रेट, तो उसका 10% कर दिया हमने ऊपर का, तो टाइम ऑफ वॉशिंग आ गया आपका 1.6 hours। तो स्टूडेंट्स फिल्ट्रेशन में से आपके कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो आपको क्वेश्चन ये आ सकता है, आपको किसी भी फिल्टर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग वो पूछ सकता है विद देयर डायग्राम। आपके पास बेसिकली 4 फिल्टर्स हैं, एक रोटरी ड्रम फिल्टर है, एक प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस है, सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर है, लीफ फिल्टर है, बैक फिल्टर है। ठीक है, इनका आप पहले प्रिंसिपल लिखेंगे, डायग्राम लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं ये कांस्टेंट प्रेशर इक्वेशन जो है वो पूछ सकते हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है आपको, और थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिल्टर्स, फिल्टर मीडियम, and what are the rate affecting filtration. So students, do prepare well and stay healthy, stay safe, stay at your home. In case of any doubt you can just ask me. Thank you.